Welcome to Key to Pharmacology. I'm Dr. Sehrish Zafar, and those who are new here, I am an associate professor at CMH Lahore Medical College. Thank you for all the subscribers for giving us huge motivation and encouraging us with your posts and comments. If you like this video, please hit the like button and do subscribe to our channel if you haven't done so yet. Today we are going to discuss the drugs that are used in the treatment of heart failure. So heart failure में कुछ ऐसी typical drugs हैं like digoxin which are sure shot exam questions. So keep following till the end and do not skip any part of the video if you want to know how digoxin was a culprit in killing 40 patients nearly 20 years ago. The drugs that are used in the treatment of heart failure are classified into cardiac glycosides, beta agonists and phosphodiesterase inhibitors which are inotropic drugs. That means कि वो force of contraction को increase करती हैं. Then there can be vasodilators which produce vasodilation and hence decrease the preload or the afterload, and then there are miscellaneous drugs like beta blockers and aldosterone antagonists. Cardiac glycosides क्या हैं? एक बेसिक स्ट्रक्चर है in which they have a steroid nucleus and a lactone ring, और उसके साथ कभी कभी कोई शुगर रेसिड्यू भी अटैच्ड होता है. They are commonly obtained from the plant which is called foxglove plant. उसमें से जो मेन हमारे पास प्रोटोटाइप एजेंट है that is digoxin, and digoxin has an oral bioavailability of almost 60 to 75%. It is a good bioavailability and a long half-life, and it is mainly excreted by the kidneys. Digoxin का mechanism क्या है? It is basically inhibiting the sodium potassium ATPase pump which is present in the cardiac muscle membrane. होता क्या है कि when the pump is inhibited there is a small increase in the intracellular sodium, जिसकी वजह से जो एक साथ ही एक साइड बाय साइड पंप चल रहा होता है which is called the sodium calcium exchanger, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाती है एंड लेस कैल्शियम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सेल, और ये जो कैल्शियम इंट्रासेल्युलर ट्रैप हो जाती है इट इज़ स्टोर्ड इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रिलीज्ड अपॉन दी व्हेनेवर देयर आर कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म्स एक्टिवेटेड. तो हो क्या रहा है, बेसिकली कैल्शियम की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जा रहा है सेल में विदाउट इंक्रीजिंग एनी ऑक्सीजन कंजम्पशन. नॉर्मली क्या होता है, जैसे बीटा एगोनिस्ट हैं, कोई और ड्रग्स हैं जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाती हैं. वो कैसे बढ़ाती हैं? वो साइक्लिक EMP प्रोड्यूस करती हैं. साइक्लिक EMP की प्रोडक्शन के लिए आपको ATP चाहिए होता है. ATP आपके एरोबिक मेटाबॉलिज्म से आ रहा होता है. सो जहाँ पे भी साइक्लिक EMP मीडिएटेड इंक्रीज्ड कंट्रैक्शन होगी उसका मतलब है कि वहाँ पे आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है. तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं है. बाय ऑल्टरिंग द फंक्शन ऑफ द ions through their pumps, calcium को trap कर लिया गया है into the cell where it is released and it causes increased force of contraction without causing an increase in the oxygen demand. If you see the diagram here, ये typical एक diagram है जो explain करती है how digoxin and many other drugs are acting in the cardiac muscle. आप देख रहे हैं कि there is a pump which is a sodium potassium ATPase pump that is blocked, जिसकी वजह से sodium retain हो रही है inside the cell. When the sodium is being retained inside the cell, तो इस sodium calcium exchanger का function जो है वो stop कर दिया जा रहा है. उसकी वजह से calcium जो है वो भी अब cell से बाहर नहीं जा सक रही है. And this excessive calcium is then stored into the sarcoplasmic reticulum from where it is released upon contraction. So cardiac effects क्या हैं digoxin के? कुछ तो मैकेनिकल इफेक्ट्स हैं. मैकेनिकल इफेक्ट्स का मतलब क्या है? देयर इज़ इंक्रीज वेंट्रिकुलर इजेक्शन. फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इम्प्रूव करेगी तो वेंट्रिकुलर मसल बेटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकुलर इजेक्शन इम्प्रूव कर जाएगी. जब ज़्यादा अच्छी वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगी तो एंड सिस्टोलिक एंड एंड डायस्टोलिक साइज डिक्रीज़ कर जाएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्लड विल बी पम्प्ड आउट, और जाहिर है कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा. जब ये कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा तो रीनल परफ्यूजन बेटर हो जाएगी, और जब ये रीनल परफ्यूजन बेटर होगी तो जो कॉन्सिक्वेंट हमारे कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स थे ना उनमें डिक्रीज़ आएगी. हो क्या रहा था, इफ़ यू रिमेंबर द प्रीवियस वीडियो,
कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से रीनल परफ्यूजन डिक्रीज कर रही थी, एंड देन द किडनीज वर स्टिमुलेटिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एंड दैट वाज अगेन स्टिमुलेटिंग द सिंपैथेटिक सिस्टम, एंड द सिंपैथेटिक सिस्टम वाज बीइंग स्टिमुलेटेड सेपरेटली ऑल्सो. तो ये जो सारे कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं, इनकी रूट कॉज क्या थी? डिक्रीज रीनल परफ्यूजन एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. जब हम इन दोनों चीज़ों को बेहतर कर देंगे तो कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्सेज डिक्रीज कर जाएंगे, और जब ये कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स डिक्रीज करेंगे तो हार्ट के ऊपर जो एक एक्सेसिव बर्डन था बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक टोन, हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ी हुई थी, प्री लोड एंड आफ्टर लोड इंक्रीज कर गए थे, ये सब डिक्रीज कर जाएंगे एंड द कार्डियक फंक्शन विल देन इम्प्रूव. और वो जो विशियस साइकिल की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, वो साइकिल हम ब्रेक कर देंगे बाय डिक्रीजिंग द कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द कार्डियक आउटपुट. Second important cardiac effect are the electrical effects. Electrical effects are basically a combination of direct effects and autonomic effects. होता क्या है कि digoxin directly भी कुछ effects produce करती है, and it also modulates the autonomic system as well. तो एक mixed सी picture आती होती है. Basically prominent effect ये है कि it causes a decrease in the AV conduction velocity. AV conduction जब decrease होगी तो PR interval prolong हो जाएगा. There is also flattening of the T wave. क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर रेट को आप डिक्रीज कर रहे हैं. सो इंक्रीज इन द AV नोडल रिफ्रैक्टरी पीरियड, बिकॉज जब AV नोड से इम्पल्सेस स्लो ट्रांसमिट होंगी फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स, तो नेचुरली आपका वेंट्रिकुलर रेट स्लो हो जाएगा. ये सारा कुछ थेरेप्यूटिक लेवल्स पे होता है, बट अगर टॉक्सिक लेवल्स पे चली जाए डाइजॉक्सिन की डोज तो क्या होता है कि ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज कर जाती है. वाई? कैल्शियम, इसका सारा मैकेनिज्म डाइजॉक्सिन का किस पे है? कैल्शियम ट्रैपिंग पे है. कैल्शियम को जब इनसाइड द सेल ट्रैप किया जा रहा होता है तो होता क्या है कि अगर टॉक्सिक डोजेस पे चला जाए तो देयर इज़ टू मच कैल्शियम बिल्डअप इनसाइड द सेल एंड दैट प्रोड्यूसेस ऑसिलेटरी पोटेंशियल्स. क्या होता है, वो कैल्शियम जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली इतनी ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है कि वो कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे जो है वो जनरेट कर रही होती है, इम्पल्सेस जनरेट कर रही होती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ख़राब कर रही होती है, और उसकी वजह से देयर आर सर्टन abnormal rhythms which are called delayed after depolarizations. इसको हम डिटेल में भी बताएंगे when we will be discussing the antiarrhythmic drugs, but for now there are certain abnormal rhythm that is produced by calcium overload that is called delayed after depolarization, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्स्ट्रा सिस्टलीज, दैट मीन्स एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, टेकीकार्डिया होना शुरू हो जाता है, एंड द सिवियर केसेस कैन टर्न इनटू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दैट कैन बी फेटल. तो दिस इज़ अ वेरी गुड डायग्राम गिवन इन बिग कैट्सन. अगर आप देखें कि इसमें 3 फैक्टर्स को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. वन इज़ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेकेंड इज़ द कैल्शियम डिटेक्टर लाइट कि कितनी कैल्शियम है एक स्पेसिफिक पार्ट जो इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, एंड द थर्ड इज़ द कंट्रैक्शन. तो क्या है कि कंट्रोल का मतलब है कि एक नॉर्मल सेल जैसे कुछ भी नहीं दिया गया हुआ, तो उसमें हमारे पास एक नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है. आप देखेंगे कि जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की पीक आती है वहाँ पे कैल्शियम भी डिटेक्ट होती है, बिकॉज वी नो कि ये जो प्लेटू फेज बन रहा होता है विच इज़ बेसिकली द फेज 2 ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कैल्शियम इनफ्लक्स. तो इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि कैल्शियम जो है उसका थोड़ा सा हमें इंक्रीज नज़र आती है डिटेक्शन में. ठीक है, एंड फॉलोइंग दैट देखें आप जहाँ पे कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है एग्जैक्टली उस पॉइंट से ये मैच कर रहा है कि वहाँ पे कंट्रैक्शन भी हो रही है, बिकॉज दैट कैल्शियम जो सेल के अंदर आती है वो सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम को ट्रिगर करती है और कंट्रैक्शन में हेल्प करती है. अगर थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन पे आप डाइजॉक्सिन देते हैं तो आपकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फेज़ 2 है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है क्योंकि आपने यहाँ पे कैल्शियम को आपने उसके बहुत ज़्यादा ट्रैप करा दिया है. ठीक है, तो डीपोलराइजेशन थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है. ठीक है, और अगर आप देखेंगे कैल्शियम की डिटेक्शन भी बहुत इंक्रीज्ड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंट्रोल. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैल्शियम दैट इज़ बीइंग डिटेक्टेड एंड द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन दैट इज़ जनरेटेड इज़ ऑल्सो मच हायर एज़ कम्पेयर टू द कंट्रोल. लेकिन अगर टॉक्सिक डोज पे चला जाए तो आप देखें क्या होता है कि इतनी ज़्यादा कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाती है कि प्लेटू मेंटेन ही नहीं होता. ठीक है, जब प्लेटू मेंटेन नहीं होता तो उसकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल का रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत जल्दी डिक्रीज कर जाते हैं, एंड इफ़ यू सी द एरोस के एक नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाती है. क्यों? बिकॉज वहाँ पे जो कैल्शियम है इतनी ज़्यादा है कि वो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में जो है वो एबनॉर्मल रिदम प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, सो अगेन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एवरी टाइम सिस्टली बढ़ जाएगी. अब एक ऐसी कंट्रैक्शन अपीयर होगी जो कि नॉर्मली प्लान्ड नहीं थी, रिदम में नहीं थी.
क्या हो रहा है कि एबनॉर्मल रिदम जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैल्शियम ओवरलोड, और उसकी वजह से एबनॉर्मल सिस्टली जनरेट हो रही है, जिसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा सिस्टलीज बन जाती हैं। क्या पिक्चर बनती है डायजॉक्सिन की? इफ़ यू सी कि बायजेमिनी जो है ना, ये बड़ा टिपिकल वर्ड है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। डायजॉक्सिन या डिजिटालिस दे कॉज बायजेमिनी। व्हाट इज़ बायजेमिनी? बायजेमिनी ये होता है कि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट इज़ कपल्ड टू नॉर्मल बीट इन 1:1 रेशो। जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखें तो देयर इज़ नॉर्मल साइनस रिदम और उसके बाद एक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट है। Then again there is normal sinus rhythm accompanied by a premature ventricular beat. ये ventricular beats क्यों आ रही हैं? Because of the calcium oscillation and overload that is producing abnormal rhythm. After the electrical effects, one more thing to consider is the autonomic effects. Autonomic effects बहुत interesting है। Low therapeutic doses पे digoxin is producing parasympathomimetic actions. ये वेगल स्टिमुलेशन कॉज करती है, उसकी वजह से मस्करिनिक ट्रांसमिशन स्टिमुलेट होती है और ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही डोज टॉक्सिक होना शुरू हो जाती है, इट कॉजेज सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज, सिंपैथोमाइमेटिक बन जाती है। थेरेप्यूटिक डोजेस पे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, टॉक्सिक डोजेस पे सिंपैथोमाइमेटिक। नाउ इन सिंपैथोमाइमेटिक क्या होता है कि ये सेंसिटाइज करती है मायोकार्डियम को कि जो ऑलरेडी सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन्स है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो। So there are premature ventricular depolarization, tachycardias, arrhythmias, bigeminal rhythm, ये सारा कुछ टॉक्सिक डोजेस पे इसलिए अपेयर होना शुरू होता है बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। आपकी बुक्स में बोथ इन मिनी कैटसन एंड बिग कैटसन एक टेबल डिस्क्राइब किया गया है विच डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डिक टिश्यूज़। इंटरेस्टिंगली जो बिग कैटसन का टेबल है वो मुझे रिलेटिवली ईजियर लगता है टू अंडरस्टैंड एंड मोर क्लिनिकली रिलेवेंट एज़ कम्पेयर टू द टेबल दैट इज़ गिवन इन मिनी कैटसन। वो मुझे थोड़ा सा रटा वाला सिस्टम ज़्यादा लगता है उसमें। सो हेयर टेकिंग द बिग कैटसन टेबल, होता क्या है कि ऐसे नोट पे आप देखें कि एट बोथ द थेरेप्यूटिक एंड द टॉक्सिक डोज द रेट डिक्रीजेस, ठीक है जी। एट्रियल मसल में रिफ्रैक्टरी पीरियड डिक्रीजेस एट द थेरेप्यूटिक डोज, और अगर ये टॉक्सिक में चला जाए तो बिकॉज रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होना शुरू हो गया है, बिकॉज मसल में जो है ना वो कैल्शियम क्या कर रही है, वो डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन क्रिएट करी है, बिकॉज कैल्शियम जो है वो सारी मस्कुलर टिश्यू, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू में जाके स्टोर हो रही है, ठीक है। सो देयर कैन बी एरिथमियास। AV नोड पे क्या है, एट द थेरेप्यूटिक डोज देयर इज़ अ डिक्रीज इन द कंडक्शन वेलोसिटी एंड इंक्रीज्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्योंकि एट दिस लेवल देयर इज़ अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट दैट इज़ डोमिनेंट। लेकिन अगर टॉक्सिक डोज पे चला जाए तो रिफ्रैक्टरी पीरियड डिक्रीज कर जाता है एंड इट कैन टर्न इनटू एरिथमियास। Purkinje system और ventricular muscle में there is slight decrease in the refractory period at the therapeutic dose because again therapeutic doses पे parasympathomimetic action produce होता है and we know that the parasympathetic receptors are in a very small quantity or negligible quantity in the ventricles, वो majorly SA node और atrial muscle में present होते हैं। But when we come to the toxic dose, there can be extrasystoles, tachycardias and fibrillation because of the sympathetic response. ECG में there is increase in the PR interval and decreased QT interval. There can be tachycardia, fibrillation or premature ventricular beats which can be observed at the high dose. After talking about the cardiac tissue, we will see कि digoxin के बाकी tissues के ऊपर क्या effects हैं. So cardiac glycosides they affect all the excitable tissues जिसमें smooth muscles भी आ जाते हैं और CNS भी आ जाता है. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, जिसकी वजह से जो इसके टिपिकल साइड इफेक्ट्स हैं नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, GI अपसेट, ये सारे कॉज होते हैं। CNS स्टिमुलेशन ऑफन कॉजेज डिसओरिएंटेशन एंड हेलुसिनेशंस, स्पेशली एट द टॉक्सिक डोसेस। देयर कैन बी विजुअल डिस्टर्बेंसेज, और जो कॉमन विजुअल डिस्टर्बेंस ऑब्जर्व की जाती है दैट इज़ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। एंड क्या होती है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस? इफ़ यू सी, ये जो यहाँ पे मैंने पिक्चर अटैच की है कि नॉर्मल विजन में we can perceive all the colors, but the red green color blindness cannot perceive the red color and the green color, and their picture is quite different. Gynecomastia and endocrine dysfunction are rare but have been observed. Interaction with potassium and calcium are extremely high yield questions and important to understand clinically also. क्या होता है कि potassium and digitalis जो है ना, इनके they interact in two ways. First is they inhibit each other's binding to the sodium potassium ATPase pump. कैसे कि they both of them bind to the same site.
तो वो दोनों compete करते हैं सेम साइट के लिए, और अगर पोटेशियम ज़्यादा होगी तो वो डाइजॉक्सिन को बाइंड नहीं करने देगी, और अगर पोटेशियम कम होगी तो डाइजॉक्सिन के पास बहुत एम्पल स्पेस होगी बाइंड करने के लिए. Which brings us to the point that hyperkalemia reduces the action of digoxin and hypokalemia facilitates the action of digoxin. Second क्या है, there is increased cardiac automaticity that is inhibited by hyperkalemia. Hyperkalemia जो है वो membrane hyperpolarize करता है. जब membrane hyperpolarize होती है तो rhythms generate नहीं होते और automaticity कम हो जाती है. सो पोटेशियम ज़्यादा होना is a good thing, especially in patients who are taking digoxin. Hyperkalemia offers protection against digitalis toxicity. तो important clinical point which I want you to write down in comments is which drugs are going to increase digoxin toxicity by causing hypokalemia. The point to ponder is anything that causes hypokalemia is going to increase the risk of digoxin toxicity. So let's talk about the drugs in comments. कौन सी drugs हैं जो hypokalemia करती हैं, and if given with digoxin can lead to digoxin toxicity. Interaction with calcium is relatively straightforward. Calcium ion facilitate करेगी toxicity को. Why? Because already mechanism क्या था कि हमने calcium build up कर लिया है सेल के अंदर. The calcium अगर वो ज़्यादा हो जाती है it is already causing problems क्योंकि वो extra systole generate करा रही है. सो इमेजिन इन दिस सिचुएशन अगर एक पेशेंट हाइपर कैल्सीमिया में होता है, उसके अंदर मज़ीद ओवरलोडिंग हो जाती है कैल्शियम की, तो दैट मीन्स कि वो जो मज़ीद ओवरलोडिंग है दैट इज़ गोइंग टू कॉज एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी एंड डिजिटालिस इंड्यूस्ड एरिथमियास को वो ट्रिगर करेगी. सो हाइपर कैल्सीमिया इज़ डेंजरस विद डाइजॉक्सिन एंड hypokalemia is also dangerous with digoxin. Talking about the clinical uses of digoxin, the most important clinical use was congestive heart failure. It was a positive inotropic agent जिस तरह हमने बात की कि ये force of contraction को increase करती है without increasing the oxygen demand. So there is an improve in the functional status, but important बात ये थी कि trials and research ने ये बताया कि it does not prolong life और अब it is no more the first line drug. It can also be used for treatment of atrial fibrillation. Why? Because ये AV conduction velocity को decrease करती है जिसकी वजह से AV node का refractory period increase कर जाता है और हम ventricular rate को control कर सकते हैं because we do not let the abnormal impulses that are being generated in the atria to be transmitted to the ventricles. That is how it is useful in treatment of atrial fibrillation. Talking about the toxicity of digoxin, it can cause GI upset, arrhythmias, visual disturbances, confusion and hallucination, details of which we have already described previously. Treat कैसे करेंगे? The first step is the correction of electrolyte imbalance. We cannot emphasize enough कि electrolyte imbalance को correct करना आपका primary root cause है जहाँ से आप toxicity को treat कर सकते हैं. So important क्या है कि hypokalemia को address करें. अगर पेशेंट हाइपोकैलेमिक है आप फौरी उसको पोटेशियम सप्लीमेंटेशन दें और हाइपोकैलेमिया इज़ जनरली द मोस्ट डेंजरस इम्बैलेंस दैट इज़ जनरली कॉजिंग द डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी. देन अगर एरिथमियाज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यू हैव टू गिव एंटी एरिथमिक ड्रग्स लाइक लाइडोकेन और फेनेटोइन. And there are specific digoxin antibodies available जो fab fragments होते हैं which come by the name of digibind. They bind to digoxin and prevents its binding to the sodium potassium ATPase pump. Diuretics cause hypokalemia. Hypokalemia is going to increase the toxicity of digoxin. Quinidine, it is an antiarrhythmic drug. It displaces digoxin from the tissue binding site और ये उसकी renal clearance भी कम करती है. So quinidine is not safe to be given along with digoxin. And also there are certain antibiotics which alter the GI flora. उसकी वजह से क्या होता है कि digoxin की availability increase कर जाती है, उसकी absorption from the gut increase कर जाती है, which can again be a problem अगर if the patient gets ends up having the toxic doses. So about digoxin, there was a nurse who admitted in 2003 कि उसने nearly 40 patients को kill किया था with overdose of digoxin, and that nurse underwent trial and 2006 में उसको 18 life sentences जो है वो death sentences उसको
उसकी punishment थी and he was not even eligible for parole. I hope this video helped you. If it did, please hit the like button and show some support in the comments section, please. And if you want to see more videos like this, please visit our channel.